उसी खुदावन के मुकद्दस नाम में आप सबको सलाम। Greetings in the name of Jesus Christ. इस नए साल में पहला मैसेज आज खुदावन का कलाम आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। This is the first message. This is the first sermon from us in this new year. बहुत सारी उम्मीदों के साथ और बहुत सारे गोल्स और चैलेंजेस जो आपकी जिंदगी में आप सब ने सेट किए हैं अपने लिए। We are starting this new year with lots of hope, with lots of goals and challenges that are in front of us. और खुदावन में उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ सोचा है नए साल के लिए, जो कुछ आपने इरादा किया है, खुदावन आपको कामयाबी और कामरानी अता करे। And we hope in the Lord and we believe in the Lord that whatever you have decided, whatever you are thinking of doing, may it come to pass. आइए हम खुदावन के हुजूर झुके और दुआ करें। Let's close our eyes, bow our head and pray. खुदाई कद्दूस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ Heavenly Father, I thank you गुजरे साल के लिए जो तूने बड़ी निगहबानी और हिफाजत की, for the last year, Lord. Thank you for protecting us and keeping us. और एक नया साल हमारी जिंदगी में बख्शा। And you have given us a new year in our life. और इस नए साल की सारी खुदावन मसरूफियात में, सारे कामों में, सारा साल तो हम सब का मुहाफिज और निगहबान होना। And Lord, I pray that in this new year, in everything we do, whatever goals, whatever challenges there are, Lord God, be with us through. आज खुदावन तेरे कलाम को शेयर करने जा रहे हैं तो तू हमारी निगहबानी और हिफाजत करना। Lord, as we share the word of God today, Lord, you help us and you guide us. अपने आप को, स्मरणा को, तमाम मीडिया को खुदावन तेरे पाक हाथों में देते हैं। Lord, I give myself, I give Smyrna, I give the media in your hands. तेरी हजूरी और तेरी मामूरी मांग लेते हैं। Lord, we ask your presence. और तमाम सुनने वालों के दिलों को खुदावन तू तैयार कर ताकि कलाम का बीज जो बोया जाए वो सब के लिए बाइस बरकत ठहरे। And Lord, we pray that whoever is listening to us right now, Lord God, may their hearts be prepared to listen to what you have to say. मसीह खुदावन के नाम से मांगते हैं, आमीन। We ask it in Jesus' name. Amen. खुदावन आप सबको बरकत दे। May the Lord bless you all. आइए आज एक नए मैसेज के साथ आपके साथ हम इस नए साल की शुरुआत करते हैं। Today we will start this new year with a new message. आज के कलाम का टॉपिक है मसीह के नक्शे कदम पर चलना। What we're going to talk about is walking in the footprints of Christ. पिछले साल हमने जो कुछ किया, पिछले साल जो हमारी मसरूफियत रही, जो हमारा काम रहा, रूहानी और जिस्मानी, उन तमाम चीजों को छोड़कर एक नई शुरुआत करें। And whatever we did in the past year, whatever we started in the past year, whatever we were doing, may it be completed in this year. May we would start new things in this year. क्योंकि नए साल में ये मेरा सोचना है कि हम मसीह खुदावन को अगर पिछले साल हमने नहीं उसको फॉलो किया है, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चले, तो आज से हम इरादा करें कि हम उसके नक्शे कदम पर चलेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। And if we did not finish it in the past year, we believe that we can do it in this year. And if we didn't follow the Lord the way we should be following Him last year, this is the chance to do it again. इस खूबसूरत उम्मीद के साथ अपने इस सफर को शुरू करें। Let's start this journey with this beautiful hope that we have in Christ. आइए हम खुदावन के कलाम में से एक खूबसूरत आयत पढ़ें। We'll read from the Word of God. मेरे साथ निकालें फिलिपियों उसका 2 बाब उसकी 5 से 8 आयत तक पढ़ेंगे हम। And if you open with me Philippians chapter 2 verse 5 to 8. सो कलाम में यूं लिखा है, The Word of God says, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। in your relationships with one another have the same mindset as Christ Jesus. उसने अगरचा खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा। Who being in very nature of God did not consider equality with God something to be used to his own advantage. बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबा हो गया। Rather he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being made in human likeness. और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक कि फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की।
And being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. आमीन। Amen. सो हम इन आयात में देखते हैं मसीह खुदावन की फरमाबरदारी और उसकी ताबेदारी आपके अपने बाप के साथ। So in these verses we see the obedience of Christ towards his Father. हम मसीह यीशु की अगर जिंदगी को देखें तो उन्होंने फरमाबरदारी अपने बाप की इंतहा से ज्यादा उसमें कोई भी उन्होंने कसर या कोई कमी नहीं रहने दी। He was obedient to the Father. अगर आप बागे गतसमनी में देखें तो हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह जब दुआ कर रहे हैं और उनका पसीना खून बन के गिर रहा है और उन्हें फरिश्ता तकवीत दे रहा है, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? पहले तो उसने कहा कि अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन फिर कहा नहीं बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। We see in the Garden of Gethsemane when Jesus was praying and his sweat was turning into blood and he was terrified by what was coming as the angel was showing him everything, but still he said, not my will, let your will be done, Father. इंसान होते हुए उन तमाम चीजों को सामने देखकर, इंसानी बदन होते हुए इंसान का रूप लिया उन्होंने, वो फील कर उन सारी तकलीफों को, उन सारी मुश्किलात को, लेकिन इसके बावजूद अपने बाप की मर्जी को उन्होंने तरजीह दी। As a human, as being in a flesh, he's feeling all that a human would feel, but still he is strong enough to say, Lord, no, and the Father, no, let your will be done. क्योंकि कलाम में लिखा है वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। The Word of God says he was a perfect God and a perfect man. खुदा की भी पूरी खूबियां थी और इंसान की भी पूरी उनमें खूबियां थी। He had all the characteristics of God and the characteristics of man. इंसान होते वो दुख महसूस करते थे, वो रोते थे, वो उनको भूख लगती थी, चलते फिरते सोते उठते जागते हर एक चीज उनके अंदर मौजूद थी। As a human, he could feel sad, he could feel happy, he could be joyful. और खुदा होते हुए उनमें वो खुदा की खूबियां थी कि वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखते थे। And being a God, he was able to raise the dead and forgive sins. और जन्म के अंधों को शफा देने की कुदरत रखते थे। He was able to heal the blind. और लंगड़े और लूले उनके कहने से शफा पाते थे। And those who couldn't walk was able to walk by his word. इवन कोढ़े लोग जो थे वो लोगों से भागते थे, क्योंकि लोग जब उनके पास जाते थे तो वो नापाक हो जाते थे। Even those who were suffering from terrible diseases was to run towards him and they used to be healed. लेकिन जब वो खुदा यीशु मसीह के पास आते थे तो वो नापाक कोढ़ी भी पाक हो जाते थे। But when they used to come to the Lord, they used to be healed. क्योंकि वो कामिल खुदा और कामिल इंसान था। Because he is a perfect God and perfect man. और इंसान होते हुए यहाँ पर वो कहते हैं कि बाप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी अज़ियत है, बहुत बड़ी तकलीफ है। And here he is saying, Lord, if it's possible, let this cup pass. लेकिन उन्होंने कहा कि बाप मेरी मर्जी ने मैं अपनी नहीं रखना चाहता, खुदावन जैसा तूने मेरे लिए प्लान बनाया, जैसा तूने मेरे लिए सोचा है, जिस मकसद के लिए तूने मुझे भेजा है, खुदावन वो तेरी मर्जी पूरी हो। And now he's like, whatever you have called me to do, whatever purpose you have for me, let that be fulfilled. अगर मसीह यीशु की हालात जिंदगी पर उनके 3.5 साल की जो जर्नी है उसके ऊपर जितने भी उलमा इकराम है, जितने भी खुदा के खादमुद्दीन है, वो सैकड़ों घंटे और सैकड़ों महीने भी बोलते रहे तो वो कम नहीं है, वो पूरा उसको कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि खुदा यीशु मसीह की जिंदगी एक हमारे लिए मशल राह है। And if all the knowledgeable preachers and all the teachers and all the philosophers would study on the life of Jesus, they would not be able to comprehend it all, and they would not be able to understand completely what he has done on this earth, maybe. But I believe that Jesus, his life is able to be followed. His life is the footprints that we need to follow. क्योंकि वो हमारे लिए एक मशल राह है, मेरे लिए नहीं, आपके लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए वो एक मशल राह है। He is the light of the world. He is the light
who lighten our ways. और इसीलिए आज हम देखेंगे कि मसीह के नक्शे कदम पर जिस तरह मसीह खुदावंद ने जिंदगी गुजारी, जिस तरह मसीह यीशु ने हमें सिखाया, हम उनके नक्शे कदम पर किस तरह चल सकते हैं। So today we'll learn how can we walk in the footprints of Jesus Christ. क्योंकि इस नए साल में हमें इस बात के लिए इस अपने आप के लिए गोल सेट करना है कि हम मसीह यीशु की जिंदगी के मुतालिक जानते हुए भी अगर आज तक हम उनके नक्शे कदम पर नहीं चले तो इस साल हमें इस बात का इरादा करना है। And we have to know that if we couldn't do it before, we have to learn how to do it in this year. This is our chance to walk in the footprints of Jesus Christ. और मसीह यीशु में सबसे बड़ी बात जो अभी हमने देखी कि फर्माबरदारी बहुत जरूरी बात है। In him, obedience was very big. और अगर आप में फर्माबरदारी है, आप अपने माँ बाप की, दुनियावी माँ बाप की फर्माबरदारी करते हैं, अपने आसमानी बाप की फर्माबरदारी करते हैं, तो आपके लिए हर एक चीज मौजूद है, हर एक चीज आपके लिए खुदावंद आपके लिए मौजूद करता है जिसकी भी आप ख्वाहिश करते हैं। Obedience to your heavenly Father and obedience to Christ Jesus is very important. ये सिर्फ एक बात आपके सामने मैंने रखी है मसीह यीशु की फर्माबरदारी की कि उन्होंने कहा क्या है बाप, मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। He said, "Not my will, Father, but let your will be done." For obedience is very important. और अगर इसी बात को अगर आप पुराने यादनामे में ले जाएं तो फर्माबरदारी पिछले यादनामे में किस तरह लोग करते थे खुदा की और अपने जिस्मानी माँ बाप की। How did people in the past used to be obedient? और अगर आप मेरे साथ एक हवाला निकालें पैदाइश उसका 22 बाब, And if you will open with me Genesis chapter 22 पैदाइश उसका 22 बाब और उसकी 9 आयत अगर हम पढ़ें and verse 9, if we'll read. और कलाम लिखा है कि और वहां इब्राहिम ने कुर्बान गाह बनाई और उस पर लकड़ियां चुनी और अपने बेटे इसहाक को बांधा और उसे कुर्बान पर लकड़ियों के ऊपर रखा और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी ली कि अपने बेटे को ज़िबा करे। When they reached the place God had told him about, Abraham built an altar there and arranged the wood on it. He bound his son Isaac and laid him on the altar on the top of the wood. यहाँ पर हम देखते हैं कि बाप इब्राहिम अपने खुदा की फर्माबरदारी कर रहा है और इसहाक जो है वो अपने बाप की फर्माबरदारी कर रहा है। Now we see here that Abraham is obeying his heavenly father, and we see that Isaac is obeying his father. बाप इब्राहिम को जब ये हुक्म मिला कि अपने बेटे को जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है मेरे लिए कुर्बान कर दे, तो ये उसके लिए आसान नहीं था। When God told Abraham to sacrifice his son, Abraham's son, on the altar, it was not easy for Abraham to do it. ये इतना इजी नहीं था कि जैसे वो किसी बकरे या छतरे को ले और जाकर खुदा के लिए कुर्बान कर दे। ये उसके बेटे की बात थी, उसे कुर्बान करने की बात थी। Isaac was not a lamb or a cow or a bull that he would easily go and sacrifice him on the altar, but he was his own son. और ये वो बेटा था जो उसे जिंदगी में अपनी उम्र के आखिरी हिस्से में खुदा ने अता किया। And he was the son of his old age. और ये पिछली उम्र की औलाद जो थी उसके लिए एक वही सहारा था। And the son was his everything. लेकिन इब्राहिम ने अपने खुदा की बात को अवलियत दी और उसने कहा कि जिसने मुझे पहले बेटा दिया है उसने मेरे साथ वादा किया कि मैं तेरी नस्ल को, मैं तेरी औलाद को रेत के जर्रों से ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो वो करने की कुदरत रखता है, इसलिए उसने बेटे को कुर्बान करने के लिए देर नहीं किया। So he said that I will increase. The word of God says that God promised Abraham that I will increase your sons and daughters like the sand, and I will like the stars in the sky. And Abraham believed that promise. और इब्राहिम इस बात पर ईमान रखता था, इसलिए उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए पहाड़ पर ले गया। And Abraham believed it, and that's why he was ready to sacrifice his own son. अगर शायद वो मेरी और आपकी तरह होता और शायद वो इतना ईमान रखते मेरी उम्र के आखिरी हिस्से में ये मुझे औलाद मिली है और इसे भी मैं कुर्बान कर दूंगा, तो फिर मैं क्या करूंगा? And if he was like us, maybe he wouldn't have believed it. और उसने खुदावंद की फरमाबरदारी की और अपने बेटे को पहाड़ पर ले गया। बाकायदा वहां पर कलाम मुकद्दस पीछे पड़े तो बेटे को उसने साथ लिया और लकड़ियां ली। तो बेटे ने सवाल किया कि बाप लकड़ियां भी हैं, आग भी है,
लेकिन बर्रा कहाँ है? And if we see in the Old Testament, Isaac questioned Abraham. He said, "We have the fire, we have the wood, we have the fire, we have the altar, but where is the sacrifice?" लेकिन इब्राहिम ने कहा कि खुदा मुहैया करेगा। And Abraham says, "God will provide." और उसने अपने बेटे पर जाहिर ना किया कि मैं क्या करने वाला हूँ। And Abraham didn't reveal on his son that what he is going to do. और अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि जो इजहाक है वो बिल्कुल दूध पीता बच्चा नहीं था, बड़ा था, जो वो चल कर गया था, और जब उसे लकड़ियों पर बांधा होगा या रखा होगा तो क्या उसने कोई भी आगे से कोई रिएक्शन नहीं किया या अपने बाप को रोका नहीं होगा? And if we see as a hawk, Isaac was not a kid. He was grown. He was understanding enough. He had enough understanding to realize that there is no sacrifice. So when Abraham bound him on the altar, he was on the altar ready to be sacrificed. He knew what is going to happen. और इसी तरह अगर हम देखें तो उसने अपने बाप के आगे, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत ज्यादा हिलोजत की हो, और उसने कहा नहीं बाप मैं कुर्बान नहीं होना चाहता, तेरा वादा खुदा के साथ है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मैं नहीं करना चाहता, मेरे लिए बहुत मुश्किल है। उसने बाप के साथ कोई ऐसी बात नहीं की। And Isaac did not argue. और उसने अपने आप को पेश कर दिया। And he gave himself. और ये फर्माबरदारी है। That is obedience. जिस तरह इब्राहिम ने अपने खुदावन की फर्माबरदारी की, इसहाक ने अपने बाप की फर्माबरदारी की और कुर्बानी के लिए तैयार हो गया। Just like Abraham obeyed God, Isaac obeyed Abraham. और जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते हैं तो खुदा हमारे इरादों और ख्यालों को जानता है और वो हमारे लिए मुहैया करने की कुदरत रखता है। And when we obey God, He knows our intentions, He knows our plans, He knows what we are trying to do, then He starts to provide for us. शायद खुदा आपके ईमान को परखता है। Maybe He tests your faith. शायद खुदा आपके इरादों और ख्यालों को परखना चाहता है। Maybe He tests your thoughts and your responses towards His tests. खुदा आपके दिल को परखना चाहता है कि वो कितना खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। He wants to test your heart. लेकिन मेरे अजीजों, अगर हम दुनियावी चीजों को, अपनी औलाद को, अपने घराने को, अपने खुदा से ज्यादा अहमियत देते हैं तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाता है उसके साथ चलना। And if we give more importance to our parents, our family, our children more than God, then it's hard. कलाम में लिखा है कि जो अपने बेटे और बेटियों को, अपने बीवी और बच्चों को, अपने माँ और बाप को मुझसे ज्यादा अजीज जानता है वो मेरे लायक नहीं। But Jesus said, whoever loves his father or mother, sons or daughter, wife or children more than he loves me or gives me importance, he is not worthy to be served. और इसी बात को इब्राहिम ने फॉलो किया और उसने अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए कुर्बानगाह पर लिटा दिया। That's what Abraham did, and he sacrificed his son. लेकिन अगर इसी में थोड़ा अगली आयत पढ़े तो कलाम में लिखा है कि खुदा ने कहा इब्राहिम अपने हाथ को रोक ले और लड़के को कोई नुकसान ना दे। But if we read the next verse, the word of God says that the Lord spoke to Abraham and said, Abraham, do not lay a hand on the boy. Do not do anything to him. और आयत में लिखा है फिर उसने कहा कि तू अपना हाथ लड़के पर ना चला और ना उसे कुछ कर, क्योंकि मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, इसलिए कि तूने अपने बेटे को भी जो तेरा इकलौता है मुझसे दरेग ना किया। And it says, do not lay a hand on the boy. He said, do not do anything to him. Now I know that you fear God, because you have not withheld from me your son, your only son. और जब हम इस लिमिट तक, इस हद तक चले जाते हैं खुदा के साथ मोहब्बत के लिए, खुदा की वफादारी के लिए, अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, अपनी औलाद, अपने घराने को, सब कुछ उस पर कुर्बान और फिदा करते हैं, तो खुदा कभी भी ऐसा नहीं है कि वो हमारा सब कुछ ले ले और हम वैसे के वैसे रह जाएं। And if we are ready to love God to that limit, if we are ready to go limitless, to love God and to give ourselves completely to Him, He is not the God who will take everything and will not give anything in return. अगर आप खुदा से प्यार करते हैं तो खुदा आपसे 10 गुना ज्यादा प्यार करता If है। you love God, He will love you more. अगर आप खुदा को कुछ देते हैं तो खुदा आपको 10 गुना ज्यादा अता करता है। If you give something to the Lord, He will give you 10 folds, 100 folds. लेकिन जरूरत अपने आप को प्रूफ करने की आप खुदा से कितना प्यार करते हैं। But this is the need to prove.
खुदा से कितनी वफादारी से चलते हैं, and how much faithful are you with the Lord? अपने अदारे के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने 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 आपकी गवर्नमेंट जो है, अपने मुल्क के साथ कितने वफादार हैं। How faithful are you to your government? How faithful are you to your family, to your spouse, to your work, to God? और इस फर्माबरदारी का सिला खुदा ने क्या दिया? उसे ईमानदारों का बाप बना दिया। And now, after doing this, Abraham became the father of the believers. और कलाम में लिखे है कि वहां पर जब लड़के को खुदा ने कहा कि अपना हाथ रोक ले, और इब्राहिम ने निगाह की तो वहां पर बर्रा खुदा ने मुहैया की, जिसकी कुर्बानी दी गई। And Bible says that as Abraham stopped and Abraham turned, and there was this lamb ready for there to be sacrificed. हमें किस कदर खुदा के साथ फर्माबरदार होने की जरूरत We है। need to be faithful and obedient to the Lord, आपकी सोच से भी ज्यादा, लिमिट से भी ज्यादा, more than what you think, what you can imagine or think. क्योंकि जो मोहब्बत खुदा ने हमसे की, शायद वो हम उसके साथ नहीं कर सकते। Because the love that the Lord did, how much the Lord loved us, we can never give Him back. और वो मोहब्बत इब्राहिम ने अपने बाप के, अपने खुदावंद के साथ की कि अपने बेटे को कुर्बान करने से दरेग नहीं किया। And that's how Abraham loved God. और आप देखते हैं कि खुदा ने उसे कितनी बरकत दी। And you see how much he was blessed. और अगर आप नए अध्याय में एक एग्जांपल छोटी सी और देख लें, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं, सिर्फ हम चंद बातें करेंगे। मेरे साथ अगर आप निकालें लूका 2 बाब और उसकी 51 आयत। And if we read Luke chapter 2 verse 51, यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह यीशु की फर्माबरदारी क्या, जब वो लड़कपन में था तो वो अपने माँ बाप के साथ, उसकी दुनियावी माँ बाप जी, उनके साथ कैसे रिलेशन थे, किस तरह ताल्लुक था, किस तरह फर्माबरदारी। and we'll see what was Jesus's relationship with his father and mother. क्योंकि वो आसमानी बाप के साथ तो उसका ताल्लुक जो था, उसने कहा है बाप मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। And his relationship with his heavenly father was, we already know, he was obedient to him, he loved him. But what was his relationship with his mother and father on earth? अगर मेरे साथ ये आयत पढ़ें तो लिखा है, If you read with me, और उनके साथ रवाना होकर नासरत में आया और उनके ताबे रहा, और उसकी माँ ने ये सब बातें अपने दिल में रखी। and the word of God says he went down to Nazareth with them and he was obedient to them. But his mother treasured all these things in her heart. अगर इसे थोड़ा सा ऊपर से पढ़े तो कलाम में लिखा है कि मरियम और यूसुफ जब खुदा यीशु मसीह के साथ वहां पर आए हैं यरूशलेम में, तो खुदा यीशु मसीह वहां पर हैकल में ही रह गए। Here we see that if we read verses before this verse, we see that Jesus came to Jerusalem with his father and mother, and he stayed in Jerusalem. और जब मरियम और यूसुफ काफिले के साथ वापस चले गए तो काफी दूर जाके उन्होंने देखा कि हमने यीशु को नहीं देखा, वो कहाँ पर है, और उसे ढूंढना शुरू कर दिया। And after going somewhere far from Jerusalem, Joseph and Mary realized, where is Jesus? We didn't see Jesus. और जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो उलमा इकराम के दरमियान बैठ के उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। And when he came back, we see that he is talking to the teachers and preachers and Pharisees. और वो लोग जो थे, वो उलमा इकराम जो थे, वो हैरान थे उसके जवाबों से और उसके सवालों से। And they were shocked by the way he was answering. क्योंकि वो अक्ल और दनाई से मामूर था। He had all the wisdom. और खुदा ने हर एक बरकत उसे दी थी। And he was blessed. अगर इसकी 52 आयत पढ़े तो लिखा है कि यीशु हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। And if we read verse 52, it says, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. वो अक्ल और दानिश और दनाई से भरा था। He was full with wisdom. खुदा के खौफ में वो अपनी जिंदगी गुजारता था। He followed the Lord. वो जानता था सब कुछ। He knew everything. बेशक उसके माँ बाप नहीं जानते थे। Even though there were some things that even his parents didn't know. इर्द गिर्द के लोग नहीं जानते थे। People around him didn't know. लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने दुनियावी अपने माँ बाप की भी इज्जत और ताबेदारी इसी तरह की। And this is how he obeyed his worldly parents. और जैसा कि आप जानते हैं कि यूसुफ कारपेंटर था, तो मेरा ईमान है कि वो अपने बाप के साथ भी हाथ बटाते होंगे।
And as we know that Joseph was a carpenter, and we know that Jesus helped Joseph as well. शायद उनके साथ टेबल कुर्सियां बनाते हो वो, Maybe he used to build chairs and tables with him. और वो अपनी माँ के साथ घर का काम भी करते हो। Maybe he used to help his mother in houseworks and chores and running errands. और हर तरह से उनके वो मददगार रहते थे, And he was always helpful towards his parents. क्योंकि अगर वो अपने आसमानी बाप के फरमाबरदार थे तो अपने जिस्मानी माँ बाप के भी पूरी तरह फरमाबरदार थे। If he was obedient to his heavenly father, he was obedient to his worldly parents as well. इसलिए मेरे अजीजों, आज हमें इस बात के लिए सोचने की जरूरत है This is what we need to think today. कि इब्राहिम ने बाप की फरमाबरदारी की, खुदावंद की, If Abraham obeyed his heavenly father, और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की और अपने आसमानी बाप की फरमाबरदारी की, and if Abraham obeyed his heavenly father, and Isaac obeyed his father, and Jesus obeyed his parents, फरमाबरदारी के मुतालिक बाइबल भरी पड़ी है, हजारों हमें मिसालें मिल सकती we हैं। can see thousands of examples related to obedience. मेरे अजीजों, आज हमें इस बात के लिए फैसला लेना है We need to decide, कि क्या हम अपने खुदा की फरमाबरदारी करते हैं। do we obey our father? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्यार किया, तुम भी अपने बहन भाइयों से वैसा ही करो। Jesus said, the way I loved you, I want you to love your parents and your family as well. जिस तरह मैंने आपके लिए जान दी, तुम भी दूसरों के लिए दो। And the way I died for you, die for others. तो क्या हम इस तरह की मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से? Do we love each other like that? क्या हम इस नए साल में अपने दिल से कदूरतें और नफरतें निकाल कर एक दूसरे से मोहब्बत की शुरुआत करते हैं? Do we take out all those things out of our hearts and we love Jesus and love each other? अपने उन मसीह बहन भाइयों के लिए जो मुश्किलात और परेशानियों में घिरे हैं, To those who are surrounded by all kinds of problems and are down and low, अपने अजीजों के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन्हें आप जानते भी नहीं and even हैं, those who you don't know, अगर वो मुश्किल में हैं, if they are in problem, तो आप क्या उनकी मदद के लिए तैयार हैं? are you ready to help them? क्या यीशु मसीह की मोहब्बत आप उनमें बांटना चाहते हैं? Do you have the love of God inside of your heart? क्योंकि कलाम लिखा है, जाओ तमाम कौमों में इंजील की मनादी करो। The word of God says, go and preach the word in every nation. ये उसका हुक्म है हमारे लिए। That's His commandment for us. क्या हम इस पर अमल करते हैं? Do we act on it? क्या ये जरूरी है कि पादरी साहबान जो खुदा का कलाम लेकर चलते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है? Is it only a responsibility of a pastor to preach the word or to do all this? क्या ये सारा जिम्मा पादरियों के जिम्मे है कि हाँ जी उन्होंने कलाम सुनाना है और उन्होंने दुआ करनी है? Is it all to the pastors that only they have to preach and only they have to pray? बल्कि आप सबका फर्ज है। But it's the duty, it's commandment towards every Christian and to you all. ये सबको हुक्म दिया कि जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। This is commandment for everyone that go and preach the word of God. एक छोटी सी मिसाल मुझे याद आई यहाँ पर। I just remembered something. बहुत साल पहले की बात है। Many days ago, मैं many years ago, sorry. पाकिस्तान में था तो मुझे एक कॉल आई I was in Pakistan and someone called me. और मैंने मुझे कहने लगी जी पार साहब हमारे लिए दुआ करें, हमारी काफी मुश्किल है, हम बड़ी परेशानी में हैं। And they said that Pastor, please pray for us. We are going through some things. और मैं और मेरी सारी टीम दुआ और रोजे में थे। And me and my whole prayer team was we were fasting and we were praying और हम already. कंटिन्यूस उनके लिए दुआ करते रहे और खुदा ने मुश्किल को आसान So we किया। started praying for them as well, and their problem was getting better. और जब उन्होंने मुझे कहा जी हम पहले से काफी बेहतर हैं और हमारी मुश्किल आसान है, काफी हम रिलैक्स हैं उस परेशानी से, And they said that we are doing much better, things are getting better now. तो मैंने उनको कहा कि क्या आप भी अपने लिए दुआ करते हैं? And I asked them, I was like, do you guys pray for yourself as well? क्या आप भी अपनी फैमिली प्रेयर करते हैं और खुदा के हुजूर झुकते हैं और दुआ और रोजा रखते हैं? Do you guys pray in your family? Do you guys fast as a family, or in your family do you guys pray for each other? और आप जानते हैं उनका जवाब क्या था? Do you know what was their answer? पर सब तो अनु असी चंदे कदली देने जे दुआवां असी करनी है। And they said, why do we give you our tithes, and why are you there?
क्योंकि जब हम ये सोचते हैं कि हम सिर्फ पादरी साहबान को हदिया देते हैं और उनका काम है दुआ करना और उनका काम है रोजे रखना और उनका काम है हमारे लिए शिफायत करना, तो फिर आप कभी भी बरकत नहीं पा सकते। And they said that people think that it's a job of a pastor to pray and preach only. It's job of the pastor to go out and talk to people about Jesus only. No, it is everyone's job. It is commandment is towards everyone. आप सबके लिए हुक्म है कि सब कौमों में जाओ और इंजील की बना दी। This is for everyone. और आप सबको मसीह के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत है। And you all have to walk on the footprints of Jesus जो Christ. हुक्म उन्होंने हमें दिए हैं उन पर अमल करने की जरूरत है। Whatever He has told us, we have to follow it. एक आखिरी हवाला मेरे साथ पढ़े जरा। This is the last scripture. पहला पतरस उसका 5 बाब। And if you will open with me 1 Peter chapter 5, verse 5. पहला पतरस 5 बाब उसकी 5 और 6 आयत पढ़ेंगे। Verse 5 to 6. नौजवानों के लिए ये खास आयत है ये। अरे जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, बल्कि फरोतनों को तौफीक बख्शता है। Amen. And it says, in the same way, you who are younger, submit yourself to your elders. All of you clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud, but shows favor to the humble. Humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you up in due time. Amen. Amen. इस बात के लिए तैयार रहे कि आप जवान जो हैं, जब आप अपने काम के लिए निकलते हैं, आप अपनी दुनियावी जिंदगी शुरू करते हैं, तो अपने बुजुर्गों और अपने बड़ों का अदब करें। It's very important for young people to submit themselves to their elders. क्योंकि नौजवान जो उनमें बड़ा जोश होता है। Because young people are very passionate about things. और समटाइम बहुत वो गुस्से में आकर अपने माँ बाप के लिए भी बहुत कुछ कह देते हैं। Sometimes when they are angry, they do say stuff about their parents as well. लेकिन मेरे अजीजों, ये बात ज़हन में रखें कि लिखा गया है, जवान अपने बुजुर्गों की इज्जत करो, उनके ताबे रहो। But it's written that submit yourself to your elders. अगर आप मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, तो फिर आपको अपने बड़ों की इज्जत करना जरूरी है। If you want to walk in the footprints of Jesus Christ, you have to honor your elders. ना कि सिर्फ माँ बाप की, बल्कि जितने भी आपसे उम्र में बड़े हैं, उनकी इज्जत करो, छोटों से प्यार करो। There should be respect for everyone. क्योंकि हर एक की इज्जत है। Because everyone has respect. और अगर आप बड़ों की इज्जत करते हैं, तो अपने खुदा की भी आप इज्जत करेंगे। If you respect others and your elders, you are respecting God as well. अगर आप दूसरों की मुश्किलात को देखेंगे, तो खुदा के उस कॉल को पूरा करेंगे। If you see other people's problems, you will be able to fulfill God's command. अगर गरीबों और यतीमों का ख्याल रखेंगे, तो खुदा उनके कलाम को पूरा करेगा। Because if you are walking in the footsteps of Jesus Christ, you have to fulfill the word of God. नहीं तो ऐसे लोगों के लिए कलाम में लिखा है कि ये उम्मत मुंह से तो मुझे खुदावंद खुदावंद कहती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। Because if you don't, then the word of God says, they call me Lord, Lord from their mouth, but their hearts are far from me. अगर आप सिर्फ नक्शे कदम पर मसीह के पीछे चलने का वादा ही करते हैं और अमल नहीं करते, तो वो आपके लिए बेकार है। And if you just say that, okay, I will walk, and it doesn't show you don't show it in your actions, then there's no use. अगर आप ईमान रखते हैं, अगर अमल नहीं करते, तो आपका ईमान मुर्दा है। If you have faith but you don't act upon it, then your faith is dead. क्योंकि आप अपने ईमान को अपने इमाल के वसीला से शो करते हैं, दिखाते हैं, ज़ाहिर करते हैं। Because your faith, you show other people your faith through your actions. और वो ईमान जो आपका खुदा पर है, आप लोगों के साथ बर्ताव करके ज़ाहिर करते हैं कि मैं खुदा के साथ प्यार करता हूँ। And if you love God, you can and you have faith on God, then your behavior with other people, the way you treat other people, will show it. मसीह खुदावंद ने कहा कि इन छोटों में से अगर किसी के साथ कोई प्यार करता है या इनकी खिदमत करता है, तो मेरे साथ करता है। The word of God, Jesus said that if you love these youngest ones, if you love those who are in the lowest life, living the not as good as others, if you love those, then you love me. अगर आप मसीह के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, If you want to walk on the footsteps of Jesus Christ, तो अपने आप को तैयार करें। then be ready.
क्योंकि खुदा आपसे प्यार करता है। because God loves you. आप आज अहद करें खुदा के साथ कि खुदा आज के बाद मैं खुदावन तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। Let's promise and let's ask the Lord. कलाम में लिखा है मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। The word of God says, I've kept your word in my heart so that I would not sin against you. अगर आज आप खुदा के साथ वादा करते हैं If you promise God today कि मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा that I will not sin क्योंकि खुदा का कलाम मैंने अपने दिल में रख लिया, because I have your word in my heart. लिखा है कि खुदावन का खौफ दनाई का शुरू है। The word of God says that the fear of the Lord is the beginning of the wisdom. अगर आप खुदा के खौफ में चलना शुरू करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली मसीह यीशु के नक्शे कदम पर अमल करेंगे और चलेंगे। If you walk in the fear of the Lord, automatically you will start walking in the faith and in the love of God. इस नए साल में अपने आप के साथ अहद करें In this new year, promise with yourself और मसीह यीशु के नक्शे कदम पर चलना शुरू करें। and let's start walking in the खुदा footsteps आपको of बरकत Jesus देगा। Christ. May God bless you. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और दुआ करें। Let's pray. खुदावंदों की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ Father, I thank you आज के इस खूबसूरत कलाम के लिए। for this beautiful message खुदावन जो तूने मुझे दिया, that you gave me. क्योंकि तेरा कलाम कभी भी बेतासीर नहीं लौटता, Because your word never comes back without doing anything. वो हर एक दिल पर असरअंदाज होता है। It works on every heart. तेरा कलाम जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है। Lord, your word has the power to change lives. तेरा कलाम गुनाहों से छुटकारा देने की कुदरत रखता है। Your word has the power to deliver people from sin. क्योंकि खुदावन तू अपने लोगों से प्यार करता है। Because you love your people. इस कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां तब्दील हों। Lord, I pray that may many lives be changed through this इस word. साल में खुदा बहुत सारे लोग खुदावन यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चले May many people would walk और अपने आप को उन तमाम बुराइयों से, उन तमाम गुनाहों से छुड़ाकर खुदावन की मर्जी को पूरा करें। and I pray that many would be delivered and changed. खुदावन तो अपने लोगों को बरकत दे। Lord, we pray that bless your people. तेरा रहम और तेरा फजल तेरे लोगों के साथ रहे। May your mercy and grace be with your people. मिन्नत को सुन और कबूल कर। We ask it in Jesus' name. मांगते हो खुदावन यीशु मसीह के नाम In से, Jesus' name. आमीन। Amen. खुदावन आप सबको बरकत दे और खुदावन आपके साथ हो इस नए साल में। May the Lord bless you and be with you.